When यार लास्ट क्या बोल, मनोज बोलता है मैं ऑफ कर देता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है. लास्ट सेंटेंस, लास्ट क्या बोला? When you make other happy, life salutes you. So, See, right. If you expect salutation, that means it is not correct. Because you are expecting something, so in zero therapy, never expect anything. And if it comes on own, accept it. So ये जितने भी बनाए ना, all these things, honesty pays, ये सब wrong है. Salutes, ये सब एकदम wrong है. Because there, live and let live, सब wrong है. Because all these things में expectation है. अगर live and let live मतलब जीने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, live again selfish. See, सब wrong and wrong. क्यों? ओवर अ पीरियड अपना ढंग ऐसा हो गया ना, कुछ फायदे की बात करो तो सुनेगा. See, शुरू से ऐसा हो गया अपना लाइफ सल्यूट्स. सो वी हैव टू बी इट ऑनेस्टी, इट पेज. तपस्या, कर्म काटते हैं, ये सब मतलब सब ऐसा रॉन्ग सिखा दिया ना कि तपस्या में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कर्म काटते हैं इसलिए तपस्या करो. सी एवरीवेयर वी हैव बीन ब्रॉट एंड टॉट because our thoughts are all not proper and all the thoughts are corrupted. Problem start hota hai because our thoughts are corrupted. An equivalent of actually thoughts is itself is not correct word. क्यों? भावना का इक्विवेलेंट कोई इंग्लिश में है नहीं तो क्या करेंगे? भावना का कोई वर्ड नहीं है ना. We have to say भावना, but then English thought with desire to get action, ये सब इतना मतलब भावना कभी कभी मोस्टली भावना अच्छे के लिए होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है. एवरी आइटम इन द वर्ल्ड रेडिएट्स heat. Every item in the world radiates heat. Everything in the world. Everything in the world. Now this is going to radiate some heat. Ice also is going to send you heat. आपने समझते नहीं? Ice also sends heat. What we think is heat is not heat. It sends hotter than zero temperature. Ice is zero temperature. Then it sends out some heat. Anything in the world sends heat, and along with that vibrations are sent. ये है साइंस. एंड वो जो वाइब्रेशन होता है ना, उसी में भावना आती है. सी इट्स वेरी वेरी, आई वांट टू शेयर, एनी वाइब्रेशन कैन नॉट बी विदाउट भावना. व्हेन यू वांट टू बी कंफर्टेबल, you have to be near the nature for good bhavana. For the nature, you have to have natural material. We are living in the plastic world. You can't be having a good nature. For nature to be real, near the nature, अपना nature तभी right होगा जब we are nearest to the nature. Our nature can be perfect. Nobody can be perfect, near perfect, if we are near the nature. Why? Because all these natural items sends vibration in the world. We must have seen when we go to a Buddhist temple, we get more peace than, sorry to say, जैन टेम्पल. कभी भी देखा होगा तुमने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में, यू हैव मोर पीस देन जैन टेम्पल. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस. इफ यू डोंट एक्सपीरियंस, गो एंड एक्सपीरियंस.
Why? Because the temple is made of wood and our temples are made of marble. Stones cannot send that much vibration, good vibration compared to wood. See, whenever you go to a big olden days house, all wooden house, you get more peace, a feeling. The reason is not that house, reason is every material sends vibration and those vibration can give you peace or may disturb the peace. So whenever you go to any house, normally plastic, sofa and then foam, everything is plastic, chairs. Naturally all those vibration you may not really if we are near the nature, we may not like it. Otherwise, so many people like it. Ah, kitna badhiya sofa, bahut elegant. All that means those people are not near the nature. They are with the world, so they will appreciate. So many people appreciate. बहुत अच्छा घर बना, वो बना, ये बना. But all will be unnatural yet because he is not able to pick up the real vibration. He is able to pick up the vibration of his vibration. He is not natural. So he will love these people. Unless you are able to really understand the bhavana, it is not possible for us. We will have to really practice to understand the bhavana. It's not easy रे. बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, when your blood relatives, you are not able to judge the bhavana. Many times because you are prejudiced. You are prejudiced. No, नहीं ऐसा नहीं किया होगा, ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं. It's very difficult to make them understand. Very difficult to make them understand that this would have happened because of this. Very close relative of mine, na, अभी tour में गए. Why? This is very big thing. They will not agree. Not tour. जिनके सब जिनके कोई रहेंगे मंदिर वंदिर समथिंग. आफ्टर कमिंग मेरी साली जी बीमार पड़ गए. दोनों साली, एक साधु और दूसरी साली दो शी इज नॉट हैविंग हस्बैंड व्हाट एवर इट इज राइट. दो सालियां और एक साधु गए मंदिर के सब में गए. राइट. आते से बीमार पड़े. नो बीमार सेम आइटम दे आर ईटिंग. तो मैंने घर में बोलना जैसे कि भाई नहीं, बीमार पड़ने का कारण भावना नहीं. वो तो गलती किए, खाना खाए, सब कुछ हुआ, गलती से खाना खाएगा. बट यू नो भावना इज सो पावरफुल दैट इफ आई वांट विदाउट माई नॉलेज आई लाइक हिम टू फॉल सिक. If I am taking medicine and this एक साली is without medicine for 15 years, heart, BP सब छोड़ दिया. 15 साल से ऊपर, 20 साल तक she has not taken one tablet. And now you went with these people and she has fallen sick. The reason is wrong food. But my assessment is पहले भी गए ना, आंटी और ये लोग भी गए पहले, तब नहीं बीमार पड़े. यू मे से कर्मा, फेट, ऑल दैट ओके राइट. पहले भी वो लोग गए फिर बीमार नहीं. इस बार क्यों बीमार पड़े? पहले भी गलती करते थे खाने में ना. बट क्या होता है जब साथ अपने जो साथ है, इफ इज ए जीरो थेरेपी एंड टू आर जीरो थेरेपी, चांसेस ऑफ मिस्टेक आर लेस. Even though you may be doing mistake, but chances are very less. And if I am non-zero therapy, without my knowledge, I am going to say, हम लोग सब खाते हैं और आपको क्यों जल्दी खराब होता है. ये जो भावना है ना, हम खाते हैं आपको क्यों नहीं होता खराब. सॉरी, हमको नहीं खराब होता है, आपको जल्दी क्यों खराब होता है.
वो जो भावना है ना, दैट मेक्स अपोजिट मैन commit a mistake. See, just listen very carefully. If I am non-gerotherapy and you are a gerotherapy, we are together. I would always like, without my knowledge, that you come on my side. Because you are not fallen sick, you are not taking tablet, you are not doing anything. Then, without my knowledge, I was just thinking, हम लोगों को तो कुछ नहीं होता है, आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो? विदाउट माई नॉलेज, आई वॉन्ट यू टू फॉल सिक. एंड मंदिर में जाने के दो पॉइंट हैं. अगर आप मंदिर गए, मंदिर जाने के लिए, ओके, एंड आई एम टेकिंग यू फॉर टिक मार्क, मैं आपको ले जा रहा हूं, लिसन वेरी केयरफुली, मैं आपको ले जा रहा हूं, एंड दैट मेक्स द डिफरेंस. ये भावना का फर्क है. ये मैंने बोला, घर में सुनने वाले नहीं है, घर वाले अपनी आंटी सुनने वाली नहीं है कि ये जो तुम गए मंदिर, पहले गए, वो मंदिर के लिए गए, अब मैं तेरे को ले जा रहा हूँ, बिकॉज माई नेम सैल्यूट्स, बोला ना अभी तूने, इसलिए आया. मेरे को आइडिया नहीं था ये बात करने का कि मैं ले जाऊँगा, मेरा नाम होगा, टिक मार्क होगा कि मैंने ले गया है. दर्शन का नहीं था ये पॉइंट. So that makes, that bhavana only makes you sick, because they're not pure, no. So that made, plus you know कि भाई has to fall. सुनने वाले नहीं है ये, और वहाँ से भी फोन आया, नहीं मेरी गलती है, मेरी गलती. अरे गलती कब होती है मालूम है? जब सामने वाला सोचे ना, या खुद सोचे. तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा साला बहुत सीखने को लायक है यार, कोई गिर गया, कुछ हो गया, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो है ना, सिंपैथी के लिए भी कभी कभी बॉडी करवा देती है गड़बड़. सी बॉडी क्या करती है, सिंपैथी के लिए करवा देती है. बाई चांस गिर गया, वो सब नहीं है. इफ देयर इज अ फंक्शन इन द हाउस एंड आई डोंट लाइक, बॉडी क्या करेगी मालूम है? मेरे को गिरा देगी, बीमार पटक देगी. सी इट हैपेंस. अगर कोई फंक्शन है तो अपना नाम कराऊंगा, बॉडी बोलती है यार मैं बीमार पड़ जाऊँ, तो एक्सीडेंट हो गया. घर वाले सुनना ले नहीं है, बट नीलेश बम बहुत होशियार है. मम्मी अगर नहीं एक्सीडेंट होता तो गाय भी मार देती. क्यों? कि सिंपैथी में उसको उस दिन पढ़ना था. माइंड ने बोला कि मेरे को आज कुछ न कुछ होना है, मेरे को अटेंड नहीं करना है. सी मेरा, हमारे घर में है ना, कोई फंक्शन होता था पहले जॉइंट फैमिली में, और उसी दिन आंटी को उल्टियाँ होने वाली है ना रे, जी कैसे होता रहे, नहीं जाने के लिए होती है ना रे, और मेरी दूसरी भाभी दूसरे दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती. सी ये सब कैसे होता है? भावना मेक्स यू सो मच, इट कैन गेट थिंग्स डन विदाउट योर नॉलेज. सी हर टाइम देखा हुआ ना, 2 महीने पहले अपने बांधक गए थे ना, लास्ट 2008 में गए. कब गए यार? 2007 में. 2007 में बांधक गए, कोई है कि नहीं माल नहीं, इंगन घाट भी गए थे. 2 महीने पहले, 3 महीने पहले टिकट होता था उस समय में. मैंने बोला कि ये मेरी साले की जो वाइफ है उस दिन बीमार रहेगी. अरे यार 3 महीने पहले बोला बीमार रहेगी, और उस दिन वो बीमार थी. क्यों? कि सिंपैथी में कि अपने जाएंगे, वो नहीं आएंगे, या कुछ सब अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए आदमी बीमार पड़ता है. बहुत बार आदमी बीमार पड़ता है अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, और अपने से अरे यार कहीं हो गया हो ना, कहीं हो गया हो, ये सब, एंड ही इज वेरी हैप्पी. सो भावना कैन मेक सो मेनी थिंग्स. यू कैन मेक यू सिक, इट कैन गेट रिवेंज. सुनने को तैयार नहीं है. आज फोन आया, साली बहुत फील हुआ कि भाई आई एम टेकिंग टैबलेट. सी फेल्ट लाइक मैड, बिकॉज 20 साल हो गया होगा यार, नो टैबलेट, नथिंग. और आज लाइक, एंड व्हेन आई टोल्ड ये भावना से होता है, साथ में गए तो होता है नहीं मेरी गलती है, मैंने नींबू लिया, वो लिया, ऑल दैट. गलती होती कहाँ से है? सामने वाला मेक्स यू कमिट ए मिस्टेक बिकॉज हिज भावना इज मोर पावरफुल. हिज भावना इज सो मच पावरफुल, एंड ब्लड रिलेशन ओनली कैन डू दैट. दोनों बहनें है ना, वही कर सकती है. ब्लड रिलेशन ही ये सब इतना काम कर सकती है. विदाउट ब्लड रिलेशन तेरी भावना इतना तक काम नहीं करेगी मेरे पर. ये बहुत पॉइंट है. ब्लड रिलेशन कैन ओनली डू दैट, and in that ladies must be involved.
और उसके बाद में भी घर वाले कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? कि एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज प्रेजुडिस, नोबडी इज गोइंग टू लिसन। फेट, कर्मा, ये सब आएगा याद, बट पहले कभी भी उसी दिन क्यों बीमार पड़ना? बट अपना भी बहुत लक है। क्यों? अपने देख नहीं रहे, और बाई चांस बीमार पड़े, अपना भी भावना से बीमार पड़ गई साली। क्यों? देखना नहीं है, और अपने सोचे कि जितने डॉक्टर पास जाओ वी आर हैप्पी, अपनी भावना से डॉक्टर पर वी आर वेरी हैप्पी, कि टेंशन घटाना अपने को। सी, तो अभी क्या बहुत जने लैंड हो रहे हैं, इफ दे आर डिपेंडिंग ऑन अस, इफ इट डिपेंड ऑन यू, यू डोंट फॉल सिक। ये विदाउट थिंक क्या होता है, आदमी की जो भावना है ना वो सीधा स्काई में जाती है, स्काई से दिस इज ट्रांसमीटर, और रिसीवर ब्लड रिलेशन में रिसीवर जल्दी पकड़ता है, तो ब्लड रिलेशन वाला उसको अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि तेरा एंटेना वो एंटेना पहले से ही मिला हुआ है, और दूसरे का एंटेना मिला हुआ नहीं है, तो नहीं हो सकता। कितना पहले पहले बता दे उस दिन ये बीमार पड़ने वाला है। भावना से एक्सीडेंट हो जाता, भावना से हो जाता है। अपने को जो करवाना, बॉडी कुछ भी करवा सकती है अपने आप, अच्छे के लिए भी हो सकती है, खराब के लिए हो सकती है, एंड सो पावरफुल यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन। इट कैन गेट थिंग्स डन सबकॉन्शियसली, इट कैन गो ऑन पियर्स एंड डू समथिंग। हाउ? अब जीरोथेरेपी फैलता है या नहीं फैलता है, ऑल डिपेंड्स ऑन द कलेक्टिव भावना। अगर भावना कलेक्टिव इज गुड, इट हैपेंस, एंड कलेक्टिव भावना इज एंटी, इट मे स्टॉप, बट इट कैन नॉट मेक दिस थिंग वैनिश, बिकॉज जीरोथेरेपी में ट्रूथ है। तो ट्रूथ जो है ना, पर्सनली आई कैन अटैक यू, बट ट्रूथ के सामने ये बेकार की भावना कुछ नहीं चल सकती। ट्रूथ के सामने नहीं चलेंगे ये सब वर्ल्डली अफेयर, आई कैन मेक सिक दिस दैट दैट, ओके, बट इफ इट इज ट्रूथ, even collective bhavana cannot fight the truth, because so powerful, it may fail today, it may fail tomorrow, but ultimately it shall triumph. Ultimately it will win, and nobody can go against this. इसीलिए अपना कभी भी सेमिनार फेल नहीं हुआ। अपना सेमिनार किसी चीज में, न तो उस दिन बारिश आती है, न कोई इलेक्ट्रिसिटी फेल होता है, न कोई लेट होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑल द पीपल इन द ग्राउंड, सबकी भावना इतनी अच्छी रहती है ना, उन भावना से जो चिल्लर है सब गायब हो जाती है, और वो जो उस दिन जो भीड़ इकट्ठी होती है अपनी, वो भावना है ना, इट ट्रेवल्स इन किलोमीटर्स, एंड उसके वहां पर कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होता है। भावना ओनली कैन मेक यू सक्सेस कलेक्टिव, एंड भावना ओनली कैन, अपोजिट में अगर है अपने पास वीक है, जब तक 10 जीरोथेरेपी वाले हैं और 1 नॉन जीरोथेरेपी कुछ नहीं होता, लेकिन 15 नॉन जीरोथेरेपी वाले हैं और 2, तो भावना उनकी अपने, वी आर फॉलोइंग जीरोथेरेपी, ओके, बट वी डोंट हैव दैट। मैरिज ऐसा थोड़ी है, इतना अंदर में थोड़ी है, ऐसा सब में अंदर में है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। कलेक्टिवली वी मस्ट टुडे स्टार्ट सेंडिंग द मैसेज टू द स्काई कि दिस साइंस शुड गो टू द वर्ल्ड। वी हैव टू सेंड दिस भावना अपने, कि ये साइंस वर्ल्ड में फैले। और जैसे ही तुम सोचोगे, कोई न कोई इस भावना को जो वेटिंग करता रहेगा, ही इज गोइंग टू पिकअप। मेन पॉइंट एसेंस है कि सब ने मिलकर इसको फैलाने के लिए खाली सोचना है, करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, खाली सोचना है, इट शुड स्प्रेड बस, एंड ऑटोमेटिकली कोई न कोई आएगा, कोई न कोई मिलेगा, एंड तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, कुछ करेगा, एंड वर्ल्ड में डालेगा। डिस्कवरी चैनल भी होगा, वो भी आ सकता है तुम्हारे पास, कोई भी आ सकता है तुम्हारे सोचने से कि ऐसा भी होता है क्या, कि ऐसा विदाउट कुछ ठीक हो सकते हैं क्या भावना से। कितनी बार बोला आपने, जा रहे हैं मंदिर गए, अलग भावना है,
और तीर्थ दर्शन जाते हैं तो वो अलग भावना। डेली जाते हैं मंदिर ठीक है, बट व्हेन यू गो तीर्थ में जाना है, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। तो दैट भावना है ना, कितना तीर्थ में मंदिर तो दोनों जगह मूर्तियां हैं, देन वाई इट मेक्स सो मच ऑफ, तीर्थ जाने में फायदा क्यों होता है, मूर्ति तो वही है भैया। बिकॉज योर भावना इज टू गो टू तीर्थ एंड यार ठीक है, लाइक डेली रिचुअल्स मंदिर में गए, सी दैट इज द डिफरेंस। दोनों सेम मूर्तियां ना यार। भावना मेक्स यू, बीमार पड़ना है तो तुम्हारे दिमाग में क्या होगा मालूम है, विदाउट मैं बोला ये यार रात भर तू माला फेर यार, अब मेरे साथ में मैं नान जरूरत रहे अया, इसमें क्या होता है, एक दिन रात भर ही करेंगे ना, एक 3 बजे 4 बजे सोएंगे, गाएंगे, रात भर जगे, जगने से बीमार पड़ना ही है। लेकिन जगने से बीमार पड़ना इज वन थिंग, बट वाई डिड यू इतना लेट क्यों हुआ। मेरी भावना है तो मैंने तेरे को बोला कि कैसे भी कुछ भी करना है तूने रात भर करो, ये करो। हर बार कोई रात भर कोई पूजा भक्ति करता है क्या, कोई करता है क्या, उस दिन क्या करेगा कोई, क्योंकि मैंने बीमार विदाउट माई नॉलेज, कोई चाहता नहीं कोई बीमार पड़ गए अंदर में, मैं नहीं चाहता हूँ तुम बीमार पड़े, लेकिन अंदर में भावना होती ना ऐसी, क्या यार ये लोग कैसे जीते हैं विदाउट दवाई, ये लोग हम दवाई, और एक जलस भावना हो जाती है ना, एक भावना जलस होती है ना। ऑल नॉन जरूरत पीपल आर जलस और जरूरत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑल नॉन जरूरत पीपल आर 100% जलस, लेकिन ट्रूथ है इसलिए उनका कुछ चलता नहीं है। लेकिन अगर ब्लड रिलेशन है तो चल सकता है, इसलिए बोला कि शुरू से बोल रहा हूँ, ब्लड रिलेशन अगर तुम्हारा वाइब्रेशन मैच नहीं होता है तो उससे दूर रहो। वाइब्रेशन कहीं मैच नहीं होता, दूर हो जाओ। बहुत बार होते हैं ना, जाते हैं एकदम आते ही अपने को आदमी अच्छा लगता है, बात करने का मन होता है, suddenly when you go to any function and you feel like talking to this man and you don't feel like talking to that man, होता ही बार बार होता है ना वही, because your vibration matches with this and your vibration do not match with this. What is vibration? What is vibration? People call vibration, what is vibration? Your thought frequency and your thought frequency, बस vibration nothing, because thoughts, the thoughts are so powerful, even in sweating, पसीने में भी तुम्हारी भावना की बात आ सकती है, मालूम है। यस, योर स्वेट कैन गिव यू द थॉट। आपका शर्ट रख दो, 10 बॉसेस का शर्ट रख दो, एंड डॉग कैन फाइंड आउट द शर्ट ऑफ ऑल द 10 डॉग्स विल फाइंड आउट द शर्ट ऑफ हिज बॉस। वो कैसे करेंगे उसको मालूम है, ही नोज द भावना ऑफ दिस मैन, and this man bhavana gives you the smell, and because of the smell he is able to find out. कुत्ता चोर को कैसे पकड़ता रहा भाई, अब उसको क्या मालूम है, स्मेल तो ये ना, बिकॉज चोरी की भावना उसको मालूम है। इट्स नॉट दैट डॉग गोज, बिकॉज ही नोज, चोरी की भावना उसको मालूम है, स्मेल मालूम, ही नोज द स्मेल ऑफ द चोरी। सी कहीं भी रिसर्च नहीं है, बट बिकॉज हाउ डज ही नो, बिकॉज दैट भावना टेक्स यू दिस वे दैट वे, that smell, because that smell से क्या हो सकता है, स्मेल से वी कैन इमेजिन, स्मेल से जानवर पैदा हो जाता है, स्मेल से वर्ल्ड पैदा हुआ, स्मेल से, स्मेल जितना डेंजर है और इतना अच्छा है कुछ भी नहीं है। बहुत बार अपने बच्चे स्मेल से बीमार हो जाते हैं ना, देन दे फील लाइक गोइंग टू गार्डन। बहुत बार पेंट वेंट ये बच्चे बीमार होते हैं तो जरूरत रहे वाले ना बाहर चलो बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव अ स्मेल ऑफ द फ्लावर, इसलिए बाहर जाना चाहते बेचारे, स्मेल ऑफ द ट्री, स्मेल ऑफ द प्लांट। कभी भी कोई ऐसा बीमार पड़ गया ना स्मेल से, जरूरत रहे वाला चिल्ड्रन को बाहर ले जाओ, घुमाओ, ठंड में मत, नहीं तो क्या आपने बोला बीच ले जाओगे फंसा दोगे मेरे को, मारने से बहुत डर लगता है, कहीं भी फंसा देंगे मेरे को, आपने बोला बाहर, मैंने थोड़ी बोला कि तुम आइस में ले जाओ, ठंड में ले जाओ, वहीं ले। बस अपना दिमाग थोड़ा तो यूज करो भाई, हरदम मेरा दिमाग यूज करोगे तो क्या होगा। यू हैव टू यूज योर ब्रेन, बट मैंने जो बोला कभी भी या किसी ने भी बोला मत सुना करो, समझी क्या तुम, कभी किसी को पूछो मत रहे। सबको क्या रहता है मालूम है, एक भावना रहती है कि मेरे को याद करें, मेरे को पूछे, सब जरूरत वाले बोलते ही रहते आजकल, मालूम है, ये खा ले रहे, वो खा ले रहे, ये खा ले रहे, क्यों, उनकी भावना रहती है कि तू ठीक हो, वो नहीं रहती रे, उनकी भावना थी मैंने ठीक किया, सी द डिफरेंस। हाँ मैंने ठीक किया, वो भावना से वो तो रॉन्ग होना ही है, ठीक है, नहीं भावना किसी की नहीं हो, इतना लेवल थोड़ी अपना।
अब बोल देते हैं मर गया तो तेरा बैड लग बच गया, तो मैं बोला ना तेरे को उस दिन ठीक हुआ, भाई ले ले तू अंजीर खा ले, हल्दी खा ले, जीरा मिश्री धनिया ले ले, मरना तो तेने ना, मैंने थोड़ी मरना है, ठीक होना तो मेरा नाम है। ये भावना इतनी बेकार है माड़ियों की ना, फॉर नथिंग दे वांट टू गेट द प्रॉफिट विदाउट इन्वेस्टमेंट। कुछ करना नहीं है कुछ भी, खाली अपना प्रॉफिट लेना है। बहुत लेडीज क्या रहता है, सब ऐसा कर ले वैसा कर ले वैसा कर ले, इधर ज़्यादा लेडीज, जेंट्स को इतना टाइम नहीं है। लेडीज कोई इनको अपना एडवाइस देना ही है, देना ही है, समझे ना। कभी मत बोलना किसी को फ़ोन किया तो मेरे को नहीं बोला। हमारे घर में फ़ोन करते हैं ना लोग, आंटी को बहुत फ़ोन करते हैं, बहुत इमरजेंसी है, ये क्या करूँ। आंटी बोला भैया मन में, मैं को फंसना नहीं है, मेरे को नहीं मालूम है, ऑफिस में फ़ोन करो। बहुत जन फ़ोन कर देंगे, आंटी को नहीं मालूम क्या, बट शी विल नॉट टेल बिकॉज शी इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट हर नेम, बट मेनी पीपल आर बॉदर्ड अबाउट नेम। अरे यार ले लेंगे, हमारे घर वालों को नहीं मालूम क्या, क्यों फंसना है यार, फिर मैं जाकर झगड़ा करूंगा, खराब होगा, क्यों मानते। 99% सब जने एडवाइस देते ही रहते हैं, क्यों कि इंडिया इज फुल ऑफ डॉक्टर्स विदाउट सर्टिफिकेट। कुछ ना कुछ हल्दी ले ले है, कोई लगा ले, कोई बोलते साबुन से धो ले, लग गया था बेचारा, एक डॉक्टर पास गया, नॉन जीरोथेरेपी समझता है डॉक्टर, ठीक है दवाई नहीं लगाना, बोला साबुन से धो ले, साबुन से धोए ना और खराब हो गया अपना बॉडी में साबुन। वो तो आप समझाए बेचारा डॉक्टर ने क्या सोचा, जीरोथेरेपी मीन्स नो मेडिसिन, तो उसने क्या बोला ठीक है साबुन से धो लो, और दवाई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, फिर फिश भी मार लिया, वो जो जला हुआ था ना और खराब हो गया। सी हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर, प्रूव हो गया। फुल नॉलेज नहीं है तो बॉडी के ऊपर छोड़ दो। बॉडी की एक भावना होती है कि आपको ठीक करने की उसकी खुद की भावना है। बॉडी वांट्स टू मेक यू परफेक्ट, बॉडी वांट्स कि अपने आप को ठीक करने की कैपेसिटी भी है, लेकिन बॉडी क्यों नहीं करती है, क्योंकि तुम्हारी भावना है कि मैं दूसरे के पास जाकर ठीक हूँ। तुम्हारे को खुद को अपनी बॉडी पर विश्वास नहीं है, तुम्हारे को किसी एर गैर पर विश्वास है। कोई बोलेगा दूध में कैसे डालते हैं, अभी तो अच्छा हो गया। बॉडी क्या करती है, एक नौकर है, एक बॉस है, मैं क्यों करना। बॉडी स्टॉप्स वर्किंग इमीडिएटली। तुम्हारी भावना जानती है बॉडी कि भैया तुमने किसी दूसरे को पूछा है और दूसरे को विपिन को भी पूछा है, तो बॉडी स्टॉप हो सकती है। अब उस तारीख में बात अलग थी, उस तारीख में मेरा इतना पावरफुल था ठीक करने का था, तो तुम्हारी कुछ नहीं चलता। मैंने बोला सो जाओ तो सो जाओ, ठीक हो जाता। मैंने बोला जाकर ये खा ले तो हो जाता। मैंने गलती से रसगुल्ला बोला तो भी ठीक हो जाता। क्यों कि तुम्हारी भावना थी कि रसगुल्ला ही इलाज है, समझना, तो ठीक हो जाते। तो भावना कैन मेक उस समय में। अब तुम्हारी भावना, मैं चाहता हूं तुम्हारी भावना इतनी पावरफुल हो कि इट डिसाइड्स व्हाट यू वांट। ओनली इट विल डिसाइड व्हेन यू डोंट यूज योर माइंड। जब तुमने माइंड लिया है कि मेरे को बुखार क्यों आया है, बुखार के लिए अंकल ने 10 साल पहले केसर दिया था, मैं भी ले लूं, तो वो क्या होता मालूम है, वो तुम्हारा भावना नहीं है, तुम्हारा माइंड बोलता है ऐसा करूं वैसा करूं वैसा करूं। तो बॉडी बोलती है इसको मरने दे यार, इसको जो करना करने दे, मैं नहीं सोचता ठीक होने का, बॉडी रुक जाती है। बॉडी के पास जिस दिन पैदा किया नेचर ने या भगवान ने या किसी ने भी, सब फैसिलिटी डाला है अगर तुमने गलती नहीं किया तो। और जीरोथेरेपी में सीधा बोलते हैं गलती नहीं करने के लिए ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सिंपल। सब रिलीजन में वही बोला कि ये नहीं करना, हर रिलीजन में यही बोला हुआ कि क्या नहीं करना, क्या करना कहीं भी नहीं लिखा, कोई भी रिलीजन में नहीं लिखा। तुमने ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये वो जो भी है, किसी रिलीजन में नहीं बोलना है कि भाई ये दान करो पुण्य करो, ये सब कहीं नहीं बोला रिलीजन में, कोई भी रिलीजन में नहीं बोला। क्यों, अगर रिलीजन बोलेगा पुण्य करो दान करो तो तुमको अच्छा मिलेगा, मिलेगा तो वापस वही सेल्फिश मोटिव। कोई रिलीजन क्यों बोलेगा भैया, रिलीजन क्यों बोलेगा ऐसा करो तो तुमको पुण्य मिलेगा, वो रिलीजन क्यों बोलेगा। रिलीजन मीन्स ट्रूथ। ये सब कौन बोलते हैं, सब रिलीजन के हेड बोलते हैं। रिलीजन कभी नहीं बोलता, जितने भी रिलीजन के हेड है ना वो सब तुमको स्वार्थ का सिखाते हैं कि ऐसा कर तो तेरे को फायदा होगा।
दान देगा तो पुण्य मिलेगा, तपस्या करेगा तो कर्म कटेंगे। ये सब सिखाते कौन है? हेड ऑफ द रिलीजन, रिलीजन के जो हेड है ना, करंट हेड, वो। क्यों? कि अपने उन पर विश्वास करते हैं और उनको भी भीड़ चाहिए, तो और अगर फायदा नहीं बताएंगे तो तुम क्यों जाओगे भाई? वो अगर कुछ नहीं, फायदा नहीं बताओगे तुम वहां जाओगे क्यों? इसलिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना, मैजिक। लेकिन जितने भी प्रीस्ट हैं या साधु हैं या मॉन्क हैं, वो स्व कल्याण के लिए पैदा हुए हैं। उनका कोई काम नहीं है जन कल्याण के लिए। द मोमेंट जन कल्याण के लिए शुरू किया उन्होंने, तो वो रिलीजन रॉन्ग है। रिलीजन दो होते हैं, रिलीजन दो तरह से फैला सकते हैं। एक तो श्रावक फैला सकता है और एक साधु फैला सकता है। साधु कम फैला सकता है, श्रावक ज्यादा फैला सकता है। क्यों? साधु के लिमिटेशंस हैं। ऑल, आई एम नॉट टॉकिंग जैन साधुस, आई एम टॉकिंग ऑल दिस इन द वर्ल्ड। मॉन्क्स है, प्रीस्ट है, पोप है, सबके लिमिटेशन है कि वो वर्ल्ड में आ नहीं सकते। अपने सिखा सकते हैं कि अपने पैदा ही हुए कि फॉलो कर सकते हैं। श्रावक में श्रावक को बोल सकता हूँ, मैं तुम लोगों को बोल सकता हूँ, तुम मेरे को बोल सकते हो। लेकिन साधु को अपना ग्राउंड नहीं मालूम, उनका ग्राउंड अलग है। उन्होंने ग्राउंड लिया सेल्फ प्यूरिफिकेशन, एंड वी आर बॉर्न ओनली फॉर इंटरैक्टिंग, डिस्कशन, ऑल दैट। इन द प्रोसेस वी मे गेट ऑल राइट। तो वो रिलीजन कहीं भी देखा होगा ना, ऑन एवरेज दिगंबर साधु डजन लेक्चर, ऐसा सुना मैंने। ज़्यादा अभी के नहीं, पहले दिगंबर साधु नहीं देते थे लेक्चर, और बुद्धिस्ट के मॉन्क वो भी नहीं देते। उनका बस दिन भर में उनकी चर्या, वो बैठा, ये क्या वो क्या, यही उनका खुद का रिलीजियस वर्क ही होता है। दे नेवर लेक्चर। क्रिश्चियन में भी एक ऐसे बस लेक्चर नहीं होता है, गए प्रे किया 1-2 मिनट में, जैसे अपना मंगलिक होता है ना, वैसा होता है उनमें भी। सब में उतना ही होता है। लेक्चर देना धर्म में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अब लोग इतना नॉलेज भी नहीं है कि धर्म पर लेक्चर दे सकें। ओनली तीर्थंकर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। केवल ज्ञान के बाद में ही एनीबडी कैन टॉक, एनी रिलीजन। अपना जैन धर्म की बात नहीं है, क्योंकि जैन तो कोई धर्म ही नहीं है। जैन इज नॉट ए धर्म एट ऑल। द प्रिंसिपल ऑफ जैन्स आर कॉमन टू ऑल द रिलीजन। अपने बोलते हैं जैन। द प्रिंसिपल ऑफ जैन रिलीजन इज कॉमन टू ऑल रिलीजन, और ऑल रिलीजन प्रिंसिपल आर सेम ओनली। कोई अलग है ही नहीं, नाम अलग दे दिया ना, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। अपने प्रिंसिपल ऑलमोस्ट पुराने रिलीजन से मैच होते हैं, ऐसे ही मैच होते हैं। जैसे बहुत से रिलीजन में भी कर्मा स्ट्रांग है, और बहुत से रिलीजन में गॉड इज क्रिएटर है। इवन वेस्ट उधर के रिलीजन में भी गॉड क्रिएटर नहीं है। कोई आग को पूजा करता है, ऐसा करता है, उधर भी है ना। जुडाइज्म, जोरास्ट्रिज्म, वो सब आर आवर सेम प्रिंसिपल, अपने जैसे ही प्रिंसिपल उनके भी ऑलमोस्ट सेम अपने जैसे है ना। जैन में या वैष्णव में या जो भी इंडियन ट्रेडिशन है, वैसे ही प्रिंसिपल है उनके भी। एवरीवेयर सब में ऑलमोस्ट सेम है। अपने में 7 प्लैनेट है ना, 7। राहु केतु तो अलग है, 7 तो ओरिजिनल है। और वो लोग भी संडे मंडे सब है ना, तो क्या है, संडे में सन, मंडे में मून, वैसे ही उनका सेम टू सेम है। चेंज क्या है, अपने जो भी ग्रह है वैसे नाम बदला उन्हें। एक्स संडे मंडे जो है ना, ऐसे ही है सब, तो एग्जैक्टली सेम है उनका और अपने में कोई फर्क नहीं है। नाम अलग अलग होते जा रहे हैं जैसे धीरे धीरे ना। नाम
ऑल रिलीजन का एक ही एसेंस है कि डू नॉट हार्म एनी क्रीचर, डू नॉट बी सेल्फिश, और द बेस्ट कैरेक्टर, द बेस्ट कैरेक्टर will have the best knowledge. The best knowledge will give you the depth ज्ञान. फर्स्ट करेक्टर होगा ना तो ही ज्ञान आ सकता है, और करेक्टर के लिए फूड एंड सोर्स ऑफ इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट सोर्स ऑफ इनकम एंड फूड नथिंग, कैरेक्टर आ ही नहीं सकता है. सोचने की ताकत ही नहीं आ सकती. अपने उसी में पड़े रहेंगे, बिजनेस प्रॉफिट वही सोचते रहेंगे. राइट सोचना है तो फर्स्ट अपने सोचना है कि बिजनेस से स्टार्ट करो, और खाने में अपना टेस्ट मत लो. अपना कैरेक्टर इंप्रूव करना है तो खाते वक्त खाने के लिए जियो, लेकिन ये खाना इतना अच्छा बड़ा है, बहुत टेस्टी है, ये सब सोचना में अपना कैरेक्टर रॉन्ग हो जाता. कैरेक्टर द मोमेंट फूड गोज ऑन योर टंग, तुम्हारी जो भावना है दैट मेक्स योर करेक्टर. फूड अंदर में जो जाता है दैट मेक्स योर बॉडी. द व्हाट यू ईट बिलो दिस मेक्स योर बॉडी गोज फॉर द ऑर्गन. व्हाट यू थिंक एट द टाइम ऑफ टंग दैट मेक्स योर करेक्टर. सी, कहीं भी नहीं है. करेक्टर इज बिल्ड the moment this goes here, and if you think ये है, ऐसा है, वैसा है, तो तुम्हारा कैरेक्टर वैसा बन जाता है, तुम्हारा लुक वैसा बन जाता है, तुम्हारा सोचने का ढंग बदल जाता है. एवरीथिंग इज सिंपल. द ग्राउंड इज डाइनिंग टेबल. द ग्राउंड इज डाइनिंग टेबल. Food is ball, tongue is your bat. Very simple. Tongue can bat properly, you will not fall sick. कौन सी बाल में आउट होना है, कौन सी बाल में नॉट आउट रहना है, कौन सी बाल छोड़ना है, कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, एंड दैट इज योर हेल्थ. सिंपल. इफ यू नो दिस मैच यू आर द विनर. एकदम बहुत इजी है. एंड जिसका ये अच्छा है उसको गंदी चीज खाने का मन ही नहीं होगा यार. अभी कितने भी जो स्ट्रॉन्ग जीरोथेरेपी हैं, अगर कोई रख दिया अचार, ही विल नॉट लाइक इट. दही रख दिया, ही विल नॉट लाइक इट. इडली रख दिया, ही विल नॉट लाइक इट. वो भावना ऐसे हो गई ना अभी कि नो का अपने आ गया. नो नो, तो जितने नो वही बाल आउटसाइड ऑफ स्टंप टच नहीं करना, बस जाने दो विकेट कीपर को, वैसे ही होना. लिव इट, चलो नहीं चाहिए, नहीं का. और बाद में दूसरे लोग फंस जाते हैं. क्यों? उनका माइंड बोलता है यार ये तो खून पतला करता है यार, गार्लिक यार, ऑनियन तो हेल्थ के लिए अच्छा है यार. है, उनका माइंड बोलता रहता है. उनको अक्ल खुद की नहीं है. कहीं पढ़ लेते हैं, ये अच्छा, वो अच्छा, ये अच्छा, पढ़ लेते हैं. पढ़ने से कभी भी ज्ञान नहीं आता है, सोचने से ही ज्ञान आएगा. खुद अपना आप सोचना, पढ़ना सब वेस्ट. क्यों? मैंने लिखा है मेरे फायदे के लिए लिखा हूँ, तूने लिखा है तेरा धर्म फैलाने के लिए, इसने लिखा उसका धर्म फैलाने के लिए, उसने लिखा है उसका साइंस. राइट कौन है किसको मालूम है भाई? और तू क्या करेगा मालूम है? जो तेरे फेवर में लिखा वही बुक खरीदेगा. सबसे बड़ा पॉइंट वही है, वो बहुत अच्छा लिखा है. क्यों? बिकॉज यू वांट टू बाई दैट बुक, बिकॉज ही टॉक्स व्हाट यू लाइक टू टॉक. प्रॉब्लम वही होता है. तू क्या करे, इतने सारे बुक में देखना, एक आदमी वही बुक सेलेक्ट करेगा जो उसको पसंद है, दूसरा आदमी वही बुक है जो पसंद है. तो राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, किसको मालूम? इट्स सो डिफिकल्ट. सो अल्टीमेटली इट इज यू हु कैन बी राइट. सो यू हैव टू थिंक योरसेल्फ. देखते जी पहले देखना ऑथर कौन है और क्यों लिखा है, इसको क्या फायदा है. हाउ टू बिकम रिच बुक लिखते हैं, है? वो साला पैसा वाला बन जाता है, अपने तो वही पटकर ही वहीं रहते हैं. ऐसा बहुत है. कल भी एक बुक देखा मैं, दी वीट में बी किलिंग यू. वीट इतना डेंजर है उसने लिखा है, वीट गेहूं इतना डेंजर है, बुक लिखा पूरा यार. फिर क्या किया उसने, रेसिपी के पीछे सब लिख दिया.
उसमें क्या है, उसको रेसिपी बेचना था है? उसमें एक भी वीट नहीं है, वीट गंदा है तो दूसरा रेसिपी ढूंढेगा, दूसरा रेसिपी ढूंढेगा तो उसकी बुक, उसका सब बुक बिकेगा। सी पूरा उसने रेसिपी लिखा पूरा विदाउट वीट, फर्स्ट बोल दिया वीट इज डेंजर दिस दैट दैट। स्पिरिचुअलिज्म एक बुक देखा कल, बोला बहुत अच्छा रहेगा यार। आखिर में वो क्या करते हैं मालूम है, भावना से तू बीमार पड़ने वाला है, तेरे को अगले जन्म ये वो हॉस्पिटल जाता है, तेरे लिए मैं प्रे करता हूँ, वो करता हूँ करके तेरा ऑर्गन निकाल देते। अभी क्या करना, स्पिरिचुअलिज्म इससे स्टार्ट किया, बहुत अच्छा लगा। बाद में आखिर में दे प्रे यू फॉर इन द हॉस्पिटल, देन व्हाट, मिल करके जाने ही वाला है ये वो, ठीक है भाई अभी तो फायदा करके जाओ, तेरे को ऐसा बनाएंगे। अच्छा यार चला गया फायदा, तेरा साइन करा लेगा मेरा ऑर्गन डोनेशन हो गया, उन दोनों का बिजनेस। वो है स्पिरिचुअलिज्म। पहले तो एग्जाम्पल देते हैं, ये मर गया था, यहाँ था, उसके भाव सब तेरे को पूर्व जन्म का भी बोलेगा, सब एग्जाम्पल दिए कि उस जन्म में यहाँ था, वो चाइनीज था, अभी आप ये बात सब प्रूव कर देते हैं। और होता भी होगा समटाइम्स, अभी पुराने जन्म अपनों याद भी आता होगा, वैसा नहीं कि नहीं आता है। समटाइम यू मे रिमेंबर योर पास्ट जन्म ऑल्सो वेर यू बॉर्न, ऑल दैट हैपेंस। पहले वो सब याद दिला देते तेरे को। इस टाइप से कुछ ना कुछ, किसी की बुक लिखा तो तू भावना पहले देखो उसने क्यों लिखा बुक, उसकी भावना देखो, सोचो। अगर आप प्रेजुडिस नहीं हो तो राइट आएगा, लेकिन अगर मेरे भाई ने लिखा है और मैं सोचूंगा तो नहीं आएगा। क्यों? अगर मेरे भाई में अफेक्शन है तो नहीं आएगा, और अपने भाई में भाई सोचना ही नहीं ना, देन यू विल गेट द राइट। बहन सोचना नहीं, यू विल गेट राइट। यू थिंक बहन है भाई है तब राइट आने वाला नहीं है। सी वहाँ गड़बड़ थी। जब भावना का स्कोप क्यों रुक जाता है, जब तुम सोचते हो कि डॉक्टर राइट है, जब तुम सोचते हो कि दवाई राइट है, तुम कुछ भी सोचो ये मेरा भाई है इसलिए राइट है, उसका क्या स्वार्थ है? अब उसके अंदर थोड़ी गुस्सा है यार, भाई का स्वार्थ क्या मालूम, किसको गुस्सा, किसके अंदर गुस्सा थोड़ी है यार, किसका मालूम नहीं पड़ता, किसी का कुछ नहीं मालूम पड़ता है। प्रेजुडिस नहीं हो तो मत सब मालूम पड़ा है, आपको भावना मालूम पड़ जाती है। अगर इफ यू थिंक एज ऑर्डिनरी मैन एंड यू गेट द रिप्लाई, बट इफ यू थिंक इज माई ब्रदर माई सिस्टर, देन यू मे गो रॉन्ग। व्हेन यू थिंक एकदम डिटैच करके सोचो, मेरा माँ है बाप है कुछ नहीं है, सोचो तो सोचो कि भाई ऑर्डिनरी आदमी। इसीलिए अंपायर जज को किसी के साथ में नहीं आने देते। अंपायर एंड जजेस आर नॉट अलाउड टू बी फ्रेंड विद एनीबडी, बिकॉज फिर उसका भावना आ जाएगा ना, तो अच्छा भी है तो मेरे को लगेगा ये बहुत अच्छा है, आई कैन गिव द रिजल्ट प्रॉपरली। सो जजेस एंड अंपायर्स आर नॉट अलाउड टू मिक्स विद द पार्टीज। अब रात को मिलते होंगे आजकल, तो वो अलग चीज़ है, कहीं मिलते होंगे जाते होंगे, लोग जाती हैं सीबीआई के वहाँ भी जाते तो होंगे, ऐसे चलता है, क्या करेंगे। अपना इच्छा के लिए कभी किसी को एडवाइस मत दो, समझे ना, और दिया तो उसको बोल लो कि मेरे को फ्री नहीं चाहिए एडवाइस। क्यों? फ्री किसी को हजम भी नहीं होगा, एडवाइस ले भी लिया फ्री ना तो हजम कैसे होगा ना, और इंडाइजेशन हो जाएगा ना। सी ऑल दैट प्रॉब्लम अगेन भावना में। आंटी कभी नहीं बोलते हैं और तुम्हारा क्या लेवल है भैया, जबकि कितने पेशेंट देखोगे, कभी मिस फायर हो सकता है। कभी भी हेमोग्लोबिन ड्राई फ्रूट से नहीं अच्छा हो सकता, ये तो बिल्कुल परफेक्ट। और मेडिकल साइंस बोलता है आयरन खाओ, मतलब मेडिकल साइंस में हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ा तो क्या बोलेंगे, अंजीर खाओ, खजूर खाओ। मेडिकल के और किस में आयरन है उनके लैंग्वेज में, एप्पल खाओ बोलेंगे, हाँ बीट रूट। और इनसे कभी भी हेमोग्लोबिन नहीं ठीक हो सकता। क्यों? उनको यही है कि हेमोग्लोबिन मीन्स आयरन, उनको दिमाग में उतने ही है। हेमोग्लोबिन डाउन होने के बहुत से रीजन होते हैं, रीजन को मालूम करो तो खाने में कुछ भी नहीं है।
रीज़न को बहुत बार अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते ना, अपने हस्बैंड को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, या अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, यू डोंट गेट आंसर, तभी हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। वो तो मेडिकल को नहीं मालूम, वो मेडिकल को नहीं मालूम ना। तो इतने सारे अपने पास सब्जेक्ट होने से ऑर्डिनरी आदमी कैसे बताएगा? ऑर्डिनरी आदमी, अगर तुमने फैलाना है भैया ये जीरो थेरेपी, तो 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन अपना जो भी भावना का एक्सपीरियंस है ना, कि भावना से ये क्यों हुआ। अंकित की बीवी ने आज बोला कि अंकल के पास जाना, और एज यूजुअल अच्छे लोग बीबी को सुनते नहीं हैं, है ना। तो मैं ऐसे ही जा रहा था, वो बाहर खड़ा था, बोलता मैं आने वाला था। अब किसकी भावना मिली, ही वांट, वहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, एंड वो अपने ऑफिस में आ गया, जो भी होगा। तो ये भावना, ये आज लेक्चर ऐसे हुआ कि भावना से कोई भी आदमी कहीं भी कुछ भी करा सकता। उसने बोला और मिलना है तो मिलना ही है। तो व्हाट आई वांट यू टू शेयर, अपने लाइफ में जो भी हुआ है पेज पेज लिखने की कोशिश मत करो। आज जो भी हुआ है एक 5 लाइन भावना का लाइफस्टाइल डिफरेंस मेल कर दो vipinjanbomb@gmail.com, तभी अपना बड़ा लेक्चर हो सकता है। उसमें फिर अपने एनालाइज करेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, देन विल बी एबल टू मेक अ बिग इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे नहीं कि मैं बैठ कर लिखता हूँ, बैठ कर नहीं लिखना है। जो भी तुमको लगा 10 लाइन 5 लाइन 15 लाइन एक मेल भेज दो, आज जो हुआ बोल दो, कल हुआ भेज दो, या एक एक पेज लिखते रहो और मेल करते रहो। कुछ भी नहीं है, किसी को दे दो, मेल करते रहो, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ सब्जेक्ट। नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। ये तो मैं ಇಡಗ್ಲಿಯಪ್ಪ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಇಡ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವಂಗ ಇಡಗ್ಲಿया फोटो 6 times गुड गुड, क्योंकि कोई नींद भी लेता तो आ जाएगा ना, और वो अपना भी देखेगा अपने को, बिकॉज यूट्यूब में देख सकते हो अभी, तो अपना आप देख सकते हो, और कहीं भी बोल सकते हो अपने रिलेटिव को, देख रहा भाई तेरे को मैं देख रहा हूँ, खुशी हूँ तो देख ले इसमें से। वो वहाँ देख सकता है यूट्यूब में, अपना इसमें देख सकते हो। तो कितना ईजी है, मोबाइल में बैठे हो स्टेशन पर कहीं भी देख सकते हो। बहुत ईजी कर दिया आपने, कितना ईजी कर दिया। एनी टाइम यू कैन जस्ट वॉक। नंबर 1 मेक इट होम पेज। नंबर 2 मेल करना बहुत ज़रूरी है। अपने जो भी हुआ है तुम मेल कर दो, ताकि उससे अपना भावना आगे फैलेंगे। जैसे तुम मेल करोगे ना, वो भावना ऐसे फैल जाएंगे ऑटोमेटिकली। तुमने कुछ नहीं करना है, खाली मेल करना है। दैट भावना थ्रू द इंटरनेट इट गोज टू द स्काई, बिकॉज इज इंटरनेट ओनली। ये तुम काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई बिलीव नहीं करेगा। एंड इफ यू वांट टू पुट योर फोटो, इफ यू वांट, और भी बिलीव कि भाई अपने खुद मैंने नहीं भेजा है मेल, इस आदमी ने भेजा है। लाइफ स्टाइल का या भावना का जो भी एक्सपीरियंस है ना, प्लीज शेयर। दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्स की पीस के लिए, यूनिवर्स की रक्षा के लिए योर कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। मेरे को अप्रिशिएशन करके लिखना में कोई मतलब नहीं है। हाउ नाउ यू आर चेंज मैन, थैंक्स टू अंकल, अंकल वो सब ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है। बट द साइंस, what impact it has made on your mind and body in a different way. एवरीडे लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे आज मैं अंकित को मिला, ऐसे हमेशा एक्सीडेंट होते हैं ना, इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे होते ही रहते हैं ना। कैसे बीमार पड़ गए, मेरी साली हमेशा नहीं बीमार पड़ती, आज क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे को देखना नहीं था, बाद में बीमार पड़ेंगे तो कभी बीमार पड़ेंगे, भारी बीमार पड़ेंगे, मैं फंस जाऊंगा। तो वो एक रीज़न है कि वो मेरी भावना से जल्दी डॉक्टर पास जाओ। एज हैप्पी मे बी दैट भावना इज ऑल्सो मोर पावरफुल, वो भी हो सकता है। और वहाँ भावना इतनी सामने वाले की ठीक बीमार पड़े तो अच्छा है। दोनों भावना वांट द सेम रिजल्ट। दे वांट हर टू गो टू डॉक्टर, आई ऑल्सो वांट टू गो टू डॉक्टर बिकॉज आई वांट टू बी एट पीस।
कोई अपना शेयर कर लो ना भावना का, अपना भी रहेगा ना कोई, तेरा भी रहेगा ना कुछ एक्सपीरियंस, सबका रहेगा ना, यू सबका ही रहेगा ना रे। कुछ हुआ रहेगा ना रिजेंट्री, कुछ कभी ऐसा सोचा, कुछ हुआ ऐसा लाइफ में, कुछ नहीं, डेली होता है। जीरो थेरेपी की तो हमेशा ही होता है, बट वी डोंट रिमेंबर और वी जस्ट टेक इट इजी। होता तो ही है, हरदम होता ही रहता है, नहीं होने का सवाल नहीं होता ना। अंकित आज का शेयर कुछ भी शेयर कर ले चल, तुरे तो बहुत होता हुआ ना रे। हाँ आ जाए नेक्स्ट में, ध्यान नहीं आ रहा है क्या? किसको ध्यान आया? नहीं तो डाउट में पूछ लो। चलो लेट्स जम्प टू द डाउट्स, फॉरगेट अबाउट द डाउट से स्टार्ट करो यार। एज यूजुअल मनोज या कालरो बेस्ट है, कालरो जाओ। या वी हैव यस कालरो नेक्स्ट, ऐसे ऐसे लाइन से बराबर है ना, उसके पीछे बराबर है। एक शेयरिंग है जय भगत ही, मद्रास में भी बुद्धिस्ट टेम्पल है एगमोर में, मैं कई बार जाता रहता हूँ और ऐसी जगह बैठ जाता हूँ। आई फाइंड इट रियली पीसफुल। और दूसरा डाउट है कि हमारे बॉडी में लाखों सेल्स हैं, वो मरते हैं फिर दूसरे पैदा होते हैं। सो सेम वे हमारे पेट के अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, वो भी लगभग 1 महीने में मैंने पढ़ा कि भाई पूरे ऑर्गन्स चेंज हो जाता है, नया स्टमक आ जाता है। और लगभग 1 साल में पूरे बॉडी के सब पार्ट्स लगभग धीरे धीरे करके चेंज हो जाते हैं। उस पर ज़रा मेरे को थोड़ा समझाइए कुछ। देखो अभी बोला कि बुक्स में जो लिखा है उसका कोई कनेक्शन नहीं, अभी बोला है। क्यों? हर आदमी कुछ नहीं लिखता है। अरे पेट चेंज नहीं होता और ऑर्गन चेंज नहीं होते, लिखने वाला एकदम रॉन्ग है। लेकिन उसके जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो चेंज होते रहते हैं सेल्स। देन यू हैव ए न्यू स्टमक इज सेम, द क्लॉथ इज डिफरेंट। स्टमक तो बदल नहीं सकता, वो जो लिखा है उसने गलती लिखा है, और कोई इंडियन बुक लिखाऊंगा, फॉरेन वेस्टर्न वाला ऐसे उल्टा सुल्टा नहीं लिखेगा। यू आर फाइंडिंग ए डिफरेंट वर्किंग ऑफ ए स्टमक, वर्किंग बिकॉज जो स्टमक के सेल्स है ना, दे चेंज। द स्टमक इज सेम, द बॉडी इज सेम, सेल्स बदल जाते हैं। तो सेल तो बदलते ही रहते हैं, वो अलग थोड़ी हैं। बॉडी के जो सेल्स हैं वो स्टमक में भी है, नाक में भी है, कान में भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। तो वो सेल्स तो बदलते ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर फूड, अकॉर्डिंग टू योर थॉट। तो इट ऑर्गन डू नॉट चेंज, ऑर्गन्स आर सेम ओनली, इट नेवर चेंजेस, बट द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गन में चेंज। कान सुनने लग जाता है, आंख दिखने लग जाती है, तो जीरोथेरेपी क्या करता है? फिर अंधे को आंख दिला देता है जीरोथेरेपी, चलो शुगर भगा देता है, सुनाई नहीं देता तो सुनने ही देता है, बच्चा नहीं होता तो बच्चा देता है। तो गर्भधानी थोड़ी चेंज हुई, उसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ऑल दैट चेंजेस। तो एक्चुअली लगता है कि न्यू है, मीन ऑर्गन बिहेव्स इन ए डिफरेंट वे। क्यों? कि उनके सब सेल्स चेंज हो गए, तो उसका थिंकिंग चेंज हो गया, उसका कारीगरी चेंज हो गई, उसके काम करने का चेंज हो गया। लेकिन अपने सोचो, बुक पढ़ करके कभी सोचते हैं ना, तो मैं बारिश आ गई ना यार। उत्तम जी आज जब निकले तो मैंने क्या बोला था आपको? हाँ कल बोला नहीं आएगी, आज सवेरे आंटी बोले ले, मैं बोला नहीं आएगी। अभी निकले जब क्या बोला? बारिश आ सकती है, छाता लो। अभी निकल 7:10 को बोला। सी तो कहाँ से मालूम पड़ता है? इतना कनेक्टिविटी है ना। तेरे कुछ डाउट आया? हाँ पूछना, डाउट पूछ ले तेरे को। तू आजा आईटी वाला, तू आजा रे, ये लो शर्ट। बच्चा कॉलेज बॉय, तेरा कुछ नहीं कहना है? जय प्रकृति। अंकल जी अभी आपने बोला था कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड राइट दे रेडिएट हीट, तो स्कूल में बताया था वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो तो रॉन्ग हो गया ना अंकल जी? वो भी रॉन्ग नहीं है, मैं भी रॉन्ग नहीं हूं। यहां से पास नहीं होगा,
लेकिन कंडक्टर ऑफ बोले तो अगर इसको तूने 10,000 वोल्ट दिया है, आग लगाई है, इसको आग लगाई है, तो इधर पास होता ही नहीं होता। अगर आग लगा दी तूने इधर तो पास होगा नहीं होगा, जलेगा नहीं जलेगा। तो देर इज ए लिमिटेशन, समझा ना। बट ये आज पड़ा है ना, ये इट रेडिएट्स, इट डजंट पास दिस हीट टू दैट साइड, समझा ना। फिर भी दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर मैंने 500 डिग्री दिया इधर तो 100% पास होगा। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला, समझा ना। तो पहले वुड इज कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वुड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट तो जाएगा ही, बट कितना टेम्परेचर में वो नहीं मालूम, जाएगा ही। अगर ये 50 डिग्री 100 डिग्री तक ठीक है, उसके बाद में जलने तो आएगा ना। तो ये सब पढ़ा है वो एकदम छोटा लेवल। गलत नहीं बोल सकता, गलत नहीं बोल सकता। दैट लिमिटेशंस नो, बट वी आर टेकिंग डिफरेंट। अपने क्या बोल रहे हैं, यहाँ पढ़ा है ना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ हीट देगा ही, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन देगा। यहाँ पढ़ा है तो यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। वो भावना अपने को आएंगी कि लकड़ी है, अच्छी है, फर्क पड़ता है। क्या डाउट नहीं कर रहा है? हाँ बोल, वहीं से बोल दो, जोर से बोल। नहीं, वो नहीं है। यस, अगर कोई खाने में कमी है तो तुम खा लो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बेवकूफ़ बनो, समझे। अगर बीबी पूछती है इम्प्रूवमेंट के लिए, खाने के बाद भी बोल सकते हो कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसे गलती मत करना, तो सिखाने के लिए भी जरूरी है। इसका मतलब नहीं कि ऐसे ही श्रावक और साधु में वो अलाउड नहीं है। यही तो डिफरेंस, साधु में बिल्कुल अलाउड नहीं, आया खाया खत्म, बट श्रावक में ये फैसिलिटी है, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमने घर में रहना है। नहीं तो गेस्ट होगा और उसी टाइम का तुम खाना बना दिया तो वो गाली मारे ना, और गाली किसको मारेगा, अपने बीबी को मारेगा ना, तो अपने को टेंशन हो जाएगा ना। इम्प्रूवमेंट के लिए वो जरूरी है, समझा ना, इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन वो जो बोला है भावना, टेस्ट के लिए नहीं बोला तुमने, सब्जेक्ट के लिए बोला। सी द डिफरेंस, शक्कर टेस्ट के लिए नहीं बोला, ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट के लिए बोला। तो वो सब्जेक्ट अलग है, और यहाँ जाती तुमने भावना उसमें क्या थी कि आइटम अच्छी बने। अगर तुम्हारी भावना है ऐसा, तो वो कैरेक्टर में जाएगा, समझा ना। बच्चा क्या है, कोई पॉइंट नहीं है? आजा बच्चा। भावना और कर्म के बीच नहीं, अभी तो 9-10 बज गया, अभी इतना बड़ा पॉइंट पूछेगा ना। नहीं, कर्मा तो है ही है पूरा। विल स्टार्ट नेक्स्ट मे बी कर्मा से। कर्मा में तो क्या है, पास्ट कर्मा है, प्रेजेंट कर्मा है, एंड दिस प्रेजेंट कर्मा बिकम्स द पास्ट कर्मा एंड इट चेंजेस योर फ्यूचर ऑल्सो। तो एवरी सेकेंड तुम्हारे सोचना ही है, कर्मा होता ही है। एवरी सेकेंड तुम्हारा थॉट मेक्स योर फ्यूचर। तो सोचने में कहीं गलती हुई, तेरा फ्यूचर में वो क्या होगा, पास कर्म हो जाएगा। आज तुम्हारा फ्यूचर है सोचना और सम टाइम, एंड कर्मा से कोई बच नहीं सकता है, इसलिए सोचो ही, रॉन्ग नहीं। रॉन्ग सोचो मत, और पुराना भुगतना ही पड़ेगा। चाहे महावीर भगवान है तो भी भुगतना पड़ेगा। हर एक को तपस्या से कट नहीं सकता है। 30 उपवास करो, वो करो, कुछ नहीं हो सकता। तुमने खराब किया, जो बीज बोया है वही झाड़ आएगा। तुमने बीज बोया कुछ, जो दूसरा झाड़, वो चांस नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बोल, लास्ट। हाँ, क्योंकि 9-10 हो गया।
नहीं, वैसे बाहर बारिश हो रही तो जा तो नहीं सकेंगे। हाँ ठीक है, मेरे को वो बात नहीं है, कैमरा वाले के पास में 1 घंटे का ही रील है, नहीं कोई बात नहीं, नॉट तो क्या है, जब उसमें नहीं आया ना तो लोग सुनने वाले क्या रहे, ढूंढ गया ये- अपने वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड, तो सब देखते हैं ना, पर क्या हो गया वापिस क्यों कट हो गया। ये जो महान आदमी थे जैसे महावीर है, बुद्धा है, जीसस है, वो पैदा हुए थे ऑर्डिनरी आदमी बन के, लेकिन उन्होंने कुछ चमत्कार किए थे या नहीं किए थे? हमको तो दिखाया गया है कि उन्होंने किए हैं, लेकिन आपकी क्या राय है उसके ऊपर? रिलीजन में चमत्कार होता ही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। रिलीजन मीन्स ट्रूथ। चमत्कार से मैं अपना करूं, अपने जरूरत में कितने बोलते थे ना, अरे वहाँ जाती ठीक होता है, चमत्कार है, सबको हम बोलते हैं भैया लिखो मत, चमत्कार नहीं है, साइंस है। तो चमत्कार जब बोलते हो ना, अपना पॉपुलर करने के लिए बोलते हैं, वो भगवान ने कोई नहीं बोला चमत्कार, उनके चमचे लोग जो है ना उन्होंने बनाए हैं सब। ऐसा होता है, जो भी साधु अगर अभी भी बोले कि चमत्कार है और ये केसर गिर गया है, ये सब एकदम रॉन्ग है, धर्म के अगेंस्ट में। क्यों? ये सब चमत्कार में आता है। चमत्कार से कभी भी किसी को फैलाना वेस्ट, फैक्ट से फैलाना है। चमत्कार कोई किसी रिलीजन के हेड ने नहीं किया, ना जीसस ने किया, ना महावीर ने किया, ना मुस्लिम के इसने किया, कोई चमत्कार करता ही नहीं है। अब ऐसी बात करते हैं, नहीं स्टॉप पढ़ने